ہیں آج کی ویڈیو میں بھوتوں سے متعلق ایک پراسرار کہانی۔ پیگی کو تیز بخار اور پیٹ میں درد تھا۔ مسز بینکرافٹ جانتی تھیں کہ یہ اپینڈکس کا درد ہے، لیکن اس وقت وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جسے وہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھیج سکتی۔ جیمز اپنے دوست سے ملنے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں باورچی موجود تھا، مگر وہ اس وقت رات کے کھانے کے انتظام میں مصروف تھا اور کام ادھورا چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ باقی وہاں بچ جاتی تھیں صرف مس کریگ۔ مس کریگ گورنس تھیں۔ مسز بینکرافٹ نے اسے بلا بھیجا۔ جیسے ہی گورنس اس کے بلانے پر کمرے میں داخل ہوئی، وہ کہنے لگی، دیکھو پیگی بہت بیمار ہے۔ مس کریگ جھک کر پیگی کو دیکھنے لگی۔ اس کو تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں فوراً کسی ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ یہی تو مسئلہ ہے مس کریگ، مسز بینکرافٹ نے پریشان لہجے میں کہا۔ قریب ترین اس وقت کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مسز ٹیپٹ کے فارم پر ایک ڈاکٹر مہمان آیا ہوا ہے۔ وہ لیورپول سے آیا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہیں۔ امید ہے کہ وہ پیگی کا علاج کر سکے گا۔ میں اس کی پوری فیس ادا کروں گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں جلدی کرنا پڑے گی، گورنس بولی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو اس وقت بلا کر کون لائے گا؟ میرا خیال ہے تمہیں مسز ٹیپٹ کے فارم پر جانے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا، مسز بینکرافٹ نے گہری نظر سے مس کریگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات سنتے ہی مس کریگ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور تنہا اتنا دور جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ چلی تو جاؤں، مگر مجھے راستہ معلوم نہیں۔ لیکن ہمیں یہ کرنا ہوگا مس کریگ۔ اچھا، میں کوشش کرتی ہوں، گورنس مس کریگ نے مرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مسز بینکرافٹ اسے راستہ سمجھانے لگی۔ بنجر پہاڑی کے پار سڑک پر 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک چوک آ جائے گا۔ وہاں سے بائیں مڑ جانا۔ یہ کچا راستہ ہے جو دیودار کے ایک چھوٹے سے جنگل تک جاتا ہے۔ وہاں سے ایک راستہ نیچے وادی میں اترتا ہے۔ مسز ٹیپٹ کا فارم اسی وادی میں ہے۔ جی بہتر، میں ابھی جاتی ہوں اور ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، مس کریگ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ اور کتے کو اپنے ساتھ لے جانا۔ مجھے امید ہے کہ کتا ساتھ ہوگا تو تم ڈرو گی نہیں۔ کمرے سے نکل کر مس کریگ سیدھی باورچی خانے پہنچی، جہاں باورچی کھانا پکانے میں مصروف تھا۔ مس کریگ نے اپنے گیلے جوتے خشک کرنے کے لیے باورچی خانے میں چولہے کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی باورچی کہنے لگا، میرا نہیں خیال کہ مالکن درست کر رہی ہیں۔ رات کے اس وقت تمہیں بنجر پہاڑی کے پار بھیجنا خطرناک ہو سکتا ہے، پر ان کی بیٹی پیگی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ پیگی کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو بلانا ضروری ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایسی تکالیف ہو ہی جاتی ہیں، تھوڑا آرام کرنے سے طبیعت سنبھل جائے گی۔ مالکن تو خواہ پریشان ہو رہی ہیں اور پریشان ہمیں بھی کر رہی ہیں، پر میں نہیں سمجھتی نا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات ہے، مس کریگ نے اپنے جوتے باندھتے ہوئے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنجر پہاڑی پر بھوت رہتے ہیں۔ اوہو باورچی، جب تک آپ خود بھوتوں پر یقین نہ کریں، بھوت آپ کو نہیں ڈرا سکتے۔ ایسی باتیں صرف وہی کر سکتا ہے جس نے بھوتوں کا کبھی سامنا نہ کیا ہو، باورچی نے منہ بناتے ہوئے بولا۔ تو کیا تم نے کبھی بھوت دیکھے ہیں؟ مس کریگ نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھے تو نہیں، لیکن ان کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ تو پھر تم کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ مس کریگ نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات سن کر اندر سے ڈر ضرور گئی تھی۔ بھوتوں سے بھلا کون نہیں ڈرتا، خصوصاً جب وقت بھی رات کا ہو، راستہ سنسان ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ان بھوتوں کی کہانیاں اس نے بھی سنی تھیں، لیکن دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح اس کا بھی خیال تھا کہ یہ محض افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بنجر پہاڑی کے اس پار چوک کے قریب کہیں ایک خوفناک قتل ہوا تھا۔ بس اسی کو لے کر لوگوں نے قصے گھڑ لیے اور اس میں بھوت شامل کر کے لوگوں کے ڈرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ مس کریگ جلد ہی تیار ہو گئیں، مگر اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کتے کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلیں تو کتا، جو کہ فطری طور پر دھیمے مزاج کا مالک تھا، ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً اپنی دم دبائی اور گھر کے اندر بھاگ گیا۔ حالانکہ وہ مس کریگ سے خاصا مانوس تھا، مگر اس وقت اس نے گورنس کی سیٹی اور پکار پر بھی کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ کہیں جا کر چھپ گیا۔
हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। इस वक्त मज़ीद ताख़ीर मुश्किल पैदा कर सकती थी। डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मिस क्रेग ने कुत्ते की मज़ीद तलाश तर्क की और तन्हा ही मिसेस स्टेप्ट के फॉर्म की तरफ चल पड़ी। गनीमत था कि बारिश तेज़ नहीं हुई और वो बंजर पहाड़ी पार करके चौक से मुड़ी और देवदार के जंगल को पार करके मिसेस स्टेप्ट के फॉर्म तक बखैरियत पहुंच गई। वहां पहुंच के उसे इल्म हुआ कि मेहमान डॉक्टर तो एक रोज़ पहले ही लिवरपूल वापस जा चुका है। ये खबर सुनकर मिस क्रेग परेशान हो गई। उसका यहाँ आना बेफायदा साबित हुआ था। बहरहाल मिसेस स्टेप्ट ने उसकी अच्छी आवभगत की, गर्म दूध के कप और ट्रफ केक के साथ उसकी खातिर तवाज़े की। जब मिस क्रेग वापसी के लिए उठी तो मिसेस स्टेप्ट ने अपने छोटे बेटे को उसके साथ भेजा कि वो मिस क्रेग को बंजर पहाड़ी तक पहुंचने का मुख्तसर रास्ता दिखा दे ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाए और उसे देवदार के जंगल से भी न गुजरना पड़े। मिसेस स्टेप्ट का बेटा एक खामोश तबाह नौजवान था, लेकिन उसकी मौजूदगी इत्मीनान बख्श थी। देवदार के जंगल के पहलू से गुजरते हुए उसने मिस क्रेग को मुख्तसर रास्ते तक पहुंचाया और ख़ुद वापस चला गया। मिस क्रेग थके हारे अंदाज में आगे बढ़ी। इस वक्त वो पैगी के मुतल्लिक सोच रही थी कि डॉक्टर के ना मिलने की वजह से उसकी तकलीफ़ कैसे दूर होगी। बंजर पहाड़ी के भूत तो उसके दिमाग से तकरीबन निकल ही चुके थे। अब वो खौफजदा भी नहीं थी। मिस क्रेग सर झुकाए तेज़ी से अपने रास्ते पर चल रही थी। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचकर मिसेस बेनक्राफ्ट को डॉक्टर के ना मिलने की इत्तला देना चाहती थी। उसी वक्त उसने अपने अकब में से किसी इंसान के कदमों की आवाज़ सुनी। चौंक कर पीछे देखा तो एक इंसान आता नजर आया। मिस क्रेग को ये देखकर सुकून हुआ कि वो अजनबी एक पादरी के लिबास में था। करीब पहुंचकर उसने अपनी टोपी को छूते हुए मिस क्रेग को सलाम किया और बोला, मेरा ख्याल है कि हम दोनों एक ही सिमत में जा रहे हैं। मिस क्रेग ने कुछ बोलने के बजाय असबात में सर हिला देने को काफ़ी समझा। वो शख्स दोबारा बोला, अगर आपको ये एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? दोनों को सफ़र में आसानी हो जाएगी। मिस क्रेग ने मुस्कुराकर उसे इजाज़त दे दी। आगे बढ़ते हुए बोली, ये रात बहुत अजीब होती है। भूतों की कहानियों के खौफ से तो इंसान का आधा खून वैसे ही खुश्क हुआ जाता है। मैं आपकी कैफियत को समझ सकता हूँ। ख़ास तौर पर ऐसी रात में मैं भी पहले ऐसा ही खौफ महसूस करता था, क्योंकि मुझे अपने काम से अक्सर रात के वक्त दूर दराज इलाकों में भी जाना पड़ता था। रास्ते सुनसान होते थे। उन रास्तों पर दिन के वक्त भी सफ़र करने से खौफ महसूस होता था। तो क्या तुम्हारा कभी किसी ऐसी चीज़ से वास्ता नहीं पड़ा जिसने तुम्हें खौफज़दा किया हो? मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे 11 साल पहले एक तजर्बा हुआ था जो मुझे आज तक याद है, और चूँकि लगता है कि अब आप बिल्कुल उसी जहनी हालत में हैं जिसमें उस वक्त मैं था, तो मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, क्या हुआ था 11 साल पहले? मिस क्रेग के लहजे में इश्तियाक था। पादरी ने गौर से उसकी तरफ देखा, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, सितंबर के महीने के आखिरी दिन थे। कुछ दूर एक गांव में एक बूढ़ी खातून का इंतकाल हो गया। उसके लवाहिकीन ने उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए मुझे बुलाया। दिन भर मसरूफ़ रहने के बाद जब मैं घर वापस आने लगा तो रात का अंधेरा फैल रहा था। सूरज गरूब हो रहा था और शफक की लाली फैल चुकी थी। एक दो लोगों ने मुझे उस वक्त सफ़र करने से मना किया, मगर मैंने उनकी बात ना मानी। मैं जल्द अज जल्द घर वापस पहुंचकर आराम करना चाहता था। गुलाबी आसमान पर सफ़ेद बादलों के छोटे छोटे टुकड़े फूलों की पंखड़ियों की तरह बिखरे बहुत प्यारे लग रहे थे। मगर जल्द ही ये सारा मंजर बदल गया। रात की तारीकी फैलने के साथ ही आसमान का रंग भी स्याह हो गया, सवाए मगरिब के एक कोने के, जहाँ एक बारीक दरार ने गरूब आफ्ताब का आखिरी ज़ाफ़रानी रंग दिखाया। जैसे जैसे मैं चल रहा था मेरी थकावट बढ़ती जा रही थी। अब मैं एक बिल्कुल सुनसान इलाके से गुजर रहा था। मुझे जो दुआएं याद थीं वो मैंने ज़ेरे लब दोहराना शुरू कर दी। इसके बावजूद मेरे दिल में तारीकी का खौफ अपनी जगह बना रहा। मैं नहीं जानता था कि मैं क्यों डर रहा था। मेरे चारों तरफ सुनसान इलाका था। कहीं कहीं छोटी छोटी झाड़ियाँ और बिखरे हुए पत्थर एक अजीब डरावना माहौल बना रहे थे। मेरे दिमाग में बार बार एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन मैं अपने दिल की आवाज़ पर तवज्जो दिए बगैर आगे ही आगे बढ़ता रहा। मैंने अपने कोट के बटन ऊपर तक बंद कर लिए और अगले इतवार के खुतबे के बारे में सोचकर अपने ख्यालात को बटाने की कोशिश की। मैं अब मुकद्दस किताब की आयात को बुलंद आवाज़ से दोहरा रहा था।
उस वक्त तक मैं उस जगह पहुंच चुका था जहां अब हम दोनों मौजूद हैं। फिर वो पादरी एक बड़े से पत्थर की तरफ इशारा करते हुए मिस क्रेग से कहने लगा, वो पत्थर देखो। ठीक उस पत्थर के पीछे से एक साया छलांग लगाकर निकला और मेरे सामने आ गया। मैं उसे देखकर ठिठक गया। तुम किस तरफ जा रही हो? उस साए ने पूछा। मुझे उसके बोलने और लहजे के अंदाज से मालूम हुआ कि वो शख्स अजनबी है और किसी दूसरे इलाके से आया है। साल के इस मौसम में बहुत से लोग जनूबी इलाकों से मकई के खेतों में काम करने के लिए यहाँ इस इलाके में आ जाते हैं, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा हैरत न हुई और मैंने उसे अपनी मंजिल बता दी। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तारीकी की वजह से उस आदमी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी जिस्मानी हैयत बता रही थी कि वो सेहतमंद और मजबूत जिस्म का मालिक है। वो बताने लगा कि वो काफ़ी दूर से सफ़र करके यहाँ पहुँचा है। उसके पास खाना था ना रकम, वो भूखा था। मुझे चांदी का एक सिक्का चाहिए। बिला आखिर उसने वो मुतालबा कर दिया जिसकी मुझे उससे तवक्का थी। इसके साथ ही उसने अपने लिबास से एक बड़ा सा चाकू निकाला और एक खौफनाक कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ उसे खोल लिया। चाकू की तेज़ धार अंधेरे में भी चमकती महसूस हुई। इतना कहते हुए पादरी के लहजे में खौफ की एक लहर महसूस हुई। फिर उसने सामने देखा जहां एक घर नजर आ रहा था। वो मिस क्रेग की तरफ देखते हुए पूछने लगा, क्या ये तुम्हारे घर की रोशनियां हैं? हाँ, मैं इसी घर में रहती हूँ, मिस क्रेग ने जवाब दिया। पादरी ने उसकी तरफ देखा और बोला, अभी मेरी कहानी का अहम हिस्सा बाकी है, बस थोड़ी देर और लगेगी। मैं जल्द ही अपनी बात ख़त्म कर लूँगा, फिर आप अपने घर जा सकेंगी। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा खौफज़दा हों। जब वो बात कर रहा था तो मिस क्रेग सोच रही थी, ऐसी बेसरोपा कहानी पर कौन यकीन करेगा, मगर इतना तो अच्छा हुआ कि उसकी वजह से वक्त और सफ़र अच्छी तरह कट गया और खौफ भी महसूस नहीं हुआ। उस वक्त पादरी ने अपनी कहानी दोबारा शुरू कर दी। वो कहने लगा, अब उस चाकू बरदार शख्स ने अपनी टोपी को सिरकाया तो मुझे उसका चेहरा नज़र आ गया। उसके दांत भींचे हुए थे और उसकी आंखों की चमक में कुछ ऐसा था जिसने मुझे फौरन ही उसका मकसद बता दिया। उस वक्त रात के 11 बजे थे। क्या आपको मालूम है कि 1 सेकंड कितना तवील होता है? 1 सेकंड के 1/3 हिस्से तक मैं उसके सामने खड़ा रहा। वो आगे बढ़ा, चाकू का फल लहराया, यूं लगा जैसे बिजली सी कूंदी हो, और फिर मुझे कुछ महसूस होने से पहले ही वो सनसनाता हुआ चाकू ऐन मेरे दिल में पेवस्त हो गया। मैं बगैर चीखे अपनी जगह पर गिर पड़ा। मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। चाकू का वार बहुत कारी था। मुझे अपनी रूह अपने जिस्म से निकलती महसूस हुई। उस लुटेरे ने मेरी तलाशी ली, जो कुछ मिला लेकर भाग निकला। मैं उसे कुछ कह भी नहीं सका। मैं ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उस वक्त भी इसी सामने वाले घर की रोशनियां मुझे नज़र आ रही थीं, जहां तुम रहती हो। मैं किसी को अपनी मदद के लिए पुकार भी ना सका। कुछ देर तक मैं यूं ही ज़मीन पर पड़ा उन रोशनियों को देखता रहा। फिर उनकी तादाद में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि पूरा आसमान टिमटिमाते चिरागों से जगमगा उठा। मैं इससे ज़्यादा तकलीफ दे मौत नहीं मर सकता था। उसके इस जुमले पर मिस क्रेग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर वो भौंचका रह गई। जहाँ कुछ लम्हे पहले पादरी खड़ा था, अब वो जगह खाली थी। वहाँ कोई ना था। मिस क्रेग वहाँ तन्हा थी। वो समझ गई कि ये उसी पादरी का भूत था। वो चीखती चिल्लाती हुई घर की तरफ भागी, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और भागती हुई हॉल तक पहुंच गई। उसकी चीखें सुनकर मिसिस बेनक्राफ्ट समेत सब लोग वहां जमा हो गए। वो हॉल में दाखिल हुई और बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ी। ऐन उसी वक्त घड़ियाल ने घंटा बजाया। रात के 11 बज चुके थे।